Yes, bro, we can start. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, पूरी यात्रा की जय. हरे कृष्ण. Welcome all for जगन्नाथ पूरी यात्रा. हरे कृष्णा. आप सभी भक्तों का जगन्नाथपुरी यात्रा के 8वें दिवस पर हार्दिक स्वागत है. हरे कृष्ण. Yesterday and day before yesterday, for 2 days consecutively, we stayed in Sarvabhauma Bhattacharya's house and had various leelas, right from Mahaprabhu coming into Puri and then changing the heart and the mind of Sarvabhauma Bhattacharya, and also making him realize the true essence of bhakti. तो पिछले 2 दिन से हम सब सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर ही है और हमने देखा कि किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को परिवर्तित किया, उन्हें भक्ति के सार के बारे में उन्हें समझाया. So we saw a few more leelas about how his son-in-law was trying to chastise Mahaprabhu and how he got the benediction, and also a few other minor, small leelas that happened in Sarvabhauma Bhattacharya's house. हमने ये भी देखा कि किस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर अमोघा को भगवान ने तारा और Today from Sarvabhauma Bhattacharya's house, on the same path, we'll go to a very important place called as Gambhira. सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से अब हम आगे निकल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान गंभीरा पर हम जाएंगे. It is also called as Radhakant Math. गंभीरा को राधाकांत मठ के नाम से भी जाना जाता है. And so Mahaprabhu, when after staying for some time with Sarvabhauma Bhattacharya, he wanted to go for South India Yatra. So he goes to South India Yatra and then comes back after 6 years. तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पे जाना चाहते थे और उसके बाद वे यात्रा पे भी गए और पूरे 6 वर्ष में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त की. So he went to all the places in Andhra Pradesh, then in Tamil Nadu, then Kerala, then Maharashtra, then up to Gujarat, and then he came towards south and then toward the west, and then again he reached back to Puri. Panchavati. महाप्रभु की यात्रा जो थी वो जगन्नाथपुरी से शुरू होकर आंध्र प्रदेश होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद पुनः वे यात्रा करके जगन्नाथपुरी वापस लौटे. Back, then everybody were very happy to receive Mahaprabhu, and then at that point of time, Mahaprabhu requests Sarvabhauma Bhattacharya for him to reside. So that is where this place Gambhira is the residence of Kashi Mishra, like we have discussed yesterday, the guru of King Pratap. दक्षिण भारत की यात्रा करने के उपरांत जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस लौटे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे अनुरोध किया कि महाप्रभु आप यहीं पुरी में ही रह जाइए. उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने पुरी में रहने का निश्चय किया और इस स्थान पर जिसे गंभीरा के नाम से जाना जाता है यहाँ पे निवास करने लगे. जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, यह निवास जो है मूलतः काशी मिश्र जी का निवास है, जो कि एक बहुत ही प्रखंड ज्योतिषी है और साथ ही साथ वे पुरी के राजा प्रताप रुद्र के एक प्रकार से मंत्री भी हैं. Gambhira is very important because until 48 years, the last part of his 20 years, he stayed only in Mahaprabhu, didn't go out anywhere. He was completely in the mood of separation and spent his last days in this particular building, this house. जैसा कि हम जानते हैं
चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल के 24 वर्ष जगन्नाथ पुरी में बिताए और अपने अपनी लीला के दौरान इसी स्थान पर रहे और इस स्थान पर उन्होंने अपने विरह भाव का प्रदर्शन किया। किस तरह से वे कृष्ण के प्रति विरह की भावना से ग्रस्त थे, उसका भी प्रदर्शन उन्होंने इसी गंभीरा नामक स्थल पे किया। First one time after a few months, then he wanted to go to Vrindavan. So with a whole lot of all the followers and disciples, all the way he started to Vrindavan and on the way to Kanai Natashala, and then from there he returned back because there he met Sanatana Goswami and Rupa Goswami, where Sanatana Goswami advised him not to go with so much of followers. So at that point, Mahaprabhu returned back to Gambhira. तो चैतन्य महाप्रभु अपने पुरी निवास के दौरान एक बार उन्होंने वृंदावन जाने का प्रयास किया और अपने सभी सहायकों के साथ और मित्रों के साथ वे वृंदावन की तरफ उन्होंने कूच किया। मार्ग में वे कनाई नाट्यशाला पे जब पहुंचे तो वहां पे उनकी भेंट रूप और सनातन गोस्वामी से हुई और रूप और सनातन गोस्वामी ने उन्हें यह आग्रह किया, उन्हें चेताया कि इस तरह से इतने सारे लोगों के साथ आपका वृंदावन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे का जो स्थान है, आगे का जो मार्ग है वो दुर्गम होने के साथ साथ बड़ा ही बिना किसी खतरों से खाली नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप पुनः वापस लौट जाएं। और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए महाप्रभु अपने सहायकों के साथ कनाई नाट्यशाला से पुनः पुरी वापस आ गए। After some 1 or 2 years again, then he wanted to go. So this time Sarvabhauma Bhattacharya and others arranged for only 1 or 2 devotees, Balabhadra Bhattacharya and one more servant, to go with Mahaprabhu. So Mahaprabhu then started went to Vrindavan, had the entire Vrindavan parikrama that we have seen. He went to Govardhan, he went to the Gantoli village, everything. And then after a few years, then he returned back to the same Gambhira. 2 वर्षों के उपरांत एक बार पुनः महाप्रभु ने वृंदावन जाने का मन बनाया। उस दौरान सार्वभौम भट्टाचार्य से उन्होंने आज्ञा ली और उस यात्रा के लिए उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य और एक निजी सहायक का उन्होंने इंतजाम किया। और उसके बाद महाप्रभु अपने इन दो सहायकों के साथ वृंदावन की यात्रा उन्होंने की। जैसा कि हमने जब व्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हमने देखा था कि बहुत सारी जगह थी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की बैठक इत्यादि थी, तो हर स्थल पे गए वो। उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की, गंतोली गांव गए और सारे वनों की दर्शन किए और सारे वनों का दर्शन करके पूरी ब्रज परिक्रमा करने के उपरांत वे पुनः इस अपने पुरी के निवास स्थान गंभीरा में वापस आए। Okay, next slide, Prabhu. Yeah, we can take some. You can take darshan of the pictures. Here, Mahaprabhu, there are separate rooms, like where Mahaprabhu closed very indoor, one very small room, and there are other rooms for others also. So we can just take darshan, then we can go into each of the leelas. तो ये गंभीरा जो स्थल है, निवास स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, सदन है और जहाँ पे उनके निजी परिकरों के निवास स्थान भी है और इन्हीं के मध्य में एक बहुत ही छोटा सा स्थल है जहाँ पे महाप्रभु निवास करते थे। तो हम इन छाया चित्रों के एक एक करके दर्शन करेंगे और उसके उपरांत हम इस लीला के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। Radha Kanta ki jai. You can see beautiful form of Mahaprabhu in a very dancing position. तो आप यहाँ पे महाप्रभु को नृत्य की मुद्रा में उनके विग्रह को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आप भगवान श्री राधा कांत जी के भी दर्शन कर। So we'll discuss about Radha Kanta deities now. So how did they manifest here? So it is mentioned that when King Purushottam Dev, when Purushottam Dev went for capturing Kanchi Mutt, Kanchipuram and other places, from there he brought this Radha Kanta deities and as well as the Kanchi Ganesh.
तो इस राधाकांत के पुरी में श्री राधाकांत के विग्रह के पुरी में प्राकट्य होने की जो कथा इस प्रकार है कि जब राजा प्रताप रुद्र जब उन्होंने दक्षिण भारत में कांची राज्य पे आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने माफ कीजिए पुरुषोत्तम देव जी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, कांची राज्य पर, और उस समय वहां के जो राजा थे उन्होंने परास्त किया था। और उसके बाद उन्हें परास्त करने के बाद उन्होंने इस राधाकांत के विग्रह और जैसा कि हमने श्री मंदिर के प्रांगण में कांची गणेश जी का दर्शन किया, उस विग्रह को कांचीपुरम से पुरी में लाकर स्थापित किया। So initially, Radhakanta, Radhakanta deity of Krishna was inside Sri Mandir. और शुरू आरंभ में ये राधाकांत जी के जो विग्रह थे वे श्री मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित थे। So when Jagannath offering was happening, Jagannath became little angry. What was happening is between the deity of Radhakanta and Jagannath Jagannath was not able to get that much of prasadam. All the prasadam, when it was offered to them together, Radhakanta started taking all the prasadam. So Jagannath came into the dream of the head pujari Panda and also to the king and told, see, this Radhakanta is taking all my prasadam, so you have to take him and give it somewhere else. Like that, Jagannath told. तो कांची से विजय प्राप्त करने के उपरांत इस विग्रह को राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन मोहन के अंदर रत्न वेदी के निकट ही इनकी स्थापना कराई। और इनके यहाँ आने की कथा ऐसी है कि जगन्नाथ जी जो थे वो राधाकांत जी से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। तो लीला ऐसी है कि जब राधाकांत जी जब भोग लगाया जाता था, चूंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी होते थे और राधाकांत जी भी होते थे, तो राधाकांत जी क्या करते थे, सारे भोग को खा लेते थे पहले, और जगन्नाथ जी को कुछ कम ही भोग मिल पाता था खाने के लिए। तो ऐसा कई दिनों तक चला और इससे जगन्नाथ जी बहुत क्रुद्ध हो गए कि मेरा जो भोग है, मेरा जो खाना है, राधाकांत खा लेता है। तो उन्होंने क्या किया, राजा के स्वप्न में आए, जो मुख्य पंडित थे उनके स्वप्न में आए और उन्हें निर्देश दिया कि आप इस राधाकांत को यहाँ से बाहर ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरा खाना खा लेता है, भोजन खा लेता है और मुझे बहुत कम भोजन खाने के लिए मिलता है। तो जगन्नाथ जी के उस निर्देश को सुन करके पंडों ने राधाकांत जी की स्थापना इस स्थल पर करी। So it was handed over to Kashi Mishra. So Kashi Mishra was also the head of the entire temple activities and guru of the king. So then the deity was given to Kashi Mishra, and his wife brought the deities because this house belongs to them. She was worshipping these beautiful deities for a long time. तो ये जो विग्रह है, जब जगन्नाथ जी का आदेश हुआ, ये विग्रह जो है ये काशी मिश्रा जी को दे दिया गया। काशी मिश्रा जी उस समय जगन्नाथ मंदिर के जो प्रमुख पंडित थे, प्रमुख पुजारी थे, तो उन्हें इस विग्रह को सुपुर्द कर दिया गया। और तदुपरांत काशी मिश्रा की जो पत्नी थी उन्होंने इसे लाकर अपने निवास स्थान, जो कि गंभीरा जो स्थल है वो उस पे वो काशी मिश्रा जी का निवास स्थान था, तो उन्होंने अपने निवास स्थान पर लाया और इस राधाकांत जी के विग्रह की पूजा अर्चना प्रारंभ की। Still it is being worshipped here, and the pratibhu of this deity is what we saw in Vrindavan. और ये अभी भी इसी गंभीरा नामक स्थल पर ये विग्रह स्थापित है, और इसकी जो प्रतिभू या इसकी जो प्रतिभू जो मूर्ति है उसको हमने श्री वृंदावन धाम में भी दर्शन किया। Kanta ki jai. Okay, next one. This is what I told. Bada Ganesha. Just hold on. I'll just check if I missed something. Yeah, 3 deities: Radhakanta, Sakshi Gopa, and Bada Ganesha. Bada Ganesha is still inside there. Radhakanta is brought out here. Yeah, I think yes. So you have covered this. Okay. So this Sakshi Gopal is different from the one Sakshi Gopal we have. Oh, the same Sakshi Gopal one. Like it was taken to south, and then King Pratap was brought back. Okay, okay. तो
राजा प्रताप रुद्र के पिता श्री पुरुषोत्तम देव ने कांचीपुर राज्य पर आक्रमण कर उसे विजय प्राप्त की और उसके बाद 3 प्रमुख विग्रहों को कांचीपुरम से पुरी ले आए। एक है राधा कांत जी की विग्रह जिन्हें आपने अभी देखा, साक्षी गोपाल जी की विग्रह जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, और बड़ा गणेश जो कि अभी भी हमने शिव मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित है। Go to the next slide. This is the Radha Kant Mat. So inside you can just take darshan of the places. ये राधाकांत मठ के भीतरी आहते के छायाचित्र हैं। Yeah. So this is very important place. This is the exact place where Mahaprabhu slept. You see in your left hand corner, you will see a grilled a cage kind of thing. So if you just zoom in, you will see Mahaprabhu's Padka and Mahaprabhu's Kamandal, which is covered by completely like sandal. तो ये वही स्थान है जहां पर महाप्रभु सोया करते थे। और अगर आप इस देख पाएंगे तो बाईं तरफ जो है एक महाप्रभु की चरण पादुका भी है और कमंडलू भी है जिसे एक बाड़े में बंद करके रखा गया है। For many years continuously Mahaprabhu wept. He just cried in the separation of Radha and Krishna. Sometimes he will just wake up around midnight, 1 o'clock, 2 o'clock. He will just bang his head on the walls and say, Krishna, Krishna, Krishna. Like that, he will just keep on calling the Lord's name and say, I'm missing you. Where are you? Where are you? Sometimes he will just rush towards the seashore, thinking that as Yamuna. And sometimes he will just go early morning somewhere in the sand and see, oh, this is Raman Reti. Like that, he will keep on running here and there. And many times he will just lie down, he will roll. All those things happened in the mood of separation in this place. तो महाप्रभु ने अपने पुरी निवास के दौरान उन्होंने अपने कृष्ण के प्रति अपने विरह की भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया। कई बार जब इस कमरे में महाप्रभु सोया करते थे तो मध्य रात्रि में उठ करके अपने मस्तक को दीवार पर मारा करते थे कृष्ण के विरह में, जिससे लहूलुहान हो जाते थे। कई बार इस कमरे को खोल करके समुद्र की तरफ जाते थे और समंदर को यमुना समझ के उसमें छलांग लगा देते थे। कई बार किसी पर्वत को देखकर उन्हें गोवर्धन का अनुभव होता था। फिर उस तरह वो भाव उन्माद में रहते थे और पूरी तरह से वे उस विरह के भाव को, कृष्ण के प्रति जो विरह है उसके भाव को पूरी तरह से वे उसको सहते रहते थे। It is mentioned in many of the chapters in the Chaitanya Charitamrita Antya-Leela, but we will not be able to understand particularly until we get the taste of the Krishna. तो ये इन सारी लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है और इस उच्च भाव को हम इस समय इस अवस्था में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पर जब हमारे पर कृष्ण की कृपा होगी तो हो सकता है हम इस चैतन्य महाप्रभु के विरह भाव का लेश मात्र जान पाए या समझ पाए। Swarup Damodar, Ramananda Rai and Govinda, very close with them. They will just call, and then whenever they see Mahaprabhu calling Ramananda Rai or Swarup Damodar, both of them will sit and just start giving out the Gopi prayers and Bhagavatam 10th canto, most important slokas and all. They will just start reciting. महाप्रभु के विरह को कम करने के उद्देश्य से रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं वे शास्त्रों से राधा और कृष्ण के संबंधित श्लोकों का महाप्रभु के सामने उच्चारण किया करते थे, जिससे कि उनके जो विरह की वेदना कम हो। सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राय वे 10वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पन्नों से
वे कुछ कुछ जो प्रमुख श्लोक हैं उनका वो उच्चारण करते थे महाप्रभु के समक्ष। Just to pacify him, they will recite those beautiful prayers, and sometimes Mahaprabhu will say, go on, please continue to read," like that. Like, for example, they will also read Bilva Mangal Thakur's poetry. So those Krishna Karnamrita. So that also they will. तो महाप्रभु के विरह को कम करने के उद्देश्य से उसके उसके कम करने के उद्देश्य से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जो है वो तरह तरह से श्लोक इत्यादि या लीलाएं जो हैं महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत करते थे। साथ ही साथ बिल्वा मंगल ठाकुर के कृष्ण कारणामृत में उद्धत श्लोकों का भी वे महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया करते थे, जिससे महाप्रभु का जो विरह है वो कम हो जाए। Sometimes they will guard the place. No, he will midnight. He should not go out. They will lock the door like that, and all they will make so that they ensure that he stays in the place. महाप्रभु क्योंकि इतने उच्च भावोन्माद में थे, भाव स्तर पे इतने उच्च भावोन्माद में हुआ करते थे कि उन्हें इस चीज का भान ही नहीं होता था कि वे कहाँ पे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, समुद्र तट पर हैं, कहाँ हैं। तो महाप्रभु की भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए कई प्राय ये भक्त जो हैं वो महाप्रभु को कमरे में बंद कर दिया करते थे, जिससे महाप्रभु कहीं जा ना पाए। और कई बार तो सारे भक्त जो है उनकी सुरक्षा में तत्पर होकर रात्रि भर सुरक्षा किया करते थे, कहीं महाप्रभु जो है भावोन्मत्त होकर घर छोड़कर न चले जाएं कृष्ण की खोज में। One day, one morning, Mahaprabhu hears a very beautiful voice of one Mataji, one lady, singing Gopi Geet, and then one Kirtan party is going on. Suddenly, Mahaprabhu becomes so much of ecstatic. He just starts jumping on the floor. He just goes and talks about, and then he just starts running behind that Kirtan group, and he was about to go near that Mataji. तो एक सुबह महाप्रभु एक बहुत ही मधुर कीर्तन सुनते हैं जो एक कीर्तन समूह से आ रही होती है, जिसमें एक माता जी हैं जो बहुत ही अच्छे सुर में भगवान के गुणगान गोपी गीत का वो उच्चारण करती रहती हैं, उसका गायन करती हैं। और उसके उपरांत महाप्रभु इतने भावोन्मुक्त हो जाते हैं कि उस ध्वनि के ओर भागने लगते हैं, उस ध्वनि की ओर भागने लगते हैं, और सारे भक्त जो हैं वे उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं और वे उस माता जी के निकट पहुंचने ही वाले रहते हैं। Make him fall down and then save him. So then Mahaprabhu will come to realization and say, what happened? Then Govinda will say, you were supposed to go near that woman. Oh, Krishna, you have saved me, Govinda, you have saved me. What a fool I am. Just by hearing this, I would have committed a biggest offense, and my sannyasa, my entire thing would have gone into waste. That he said. और जब महाप्रभु उस स्त्री के निकट पहुंचने ही वाले थे, तब महाप्रभु के जो सहायक या परिकर गोविंद जो हैं उन्हें इस तरह से उन्हें खींचते हैं और उन्हें उस माता जी को स्पर्श करने से बचा लेते हैं। और फिर महाप्रभु की चेतना उस बाहरी चेतना से जो बाहरी चेतना में वापस आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ गोविंद? तो गोविंद कहते हैं कि महाप्रभु आप उस स्त्री का स्पर्श करने जा रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं, गोविंद तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे सन्यास को बचा लिया। लोग क्या कहते, अगर स्त्री को स्पर्श करता तो मेरा सन्यास का व्रत जो है वो भंग हो जाता। तुमने मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार किया। Actually, Mahaprabhu was in that mood that he didn't know that it is a female or a male or something. He was just only hearing about the Geetam and about so absorbed in the Lord's love and affection. वास्तविकता यह है कि महाप्रभु को ये भान ही नहीं हो पाया कि वो स्त्री गा रही या पुरुष गा रहा है। महाप्रभु तो उस भाव में थे जिसमें उन्हें सिर्फ उस गीत का लय इतना मधुर लगा, क्योंकि वह गीत जो था वो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर रहा था, और उसी में भावोन्मुक्त होकर वे उस ध्वनि के निकट जाना चाहते थे कि कौन इस इतने मधुर स्वर में भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर रहा है। Okay, go to the next one. Kamandala, Paduka, and quilt. That is there actually. So we can take darshan. Yes, we've already taken darshan. And now this deity is taken out,
Earlier it was inside the room. Now I think it's taken out. One of the तो oldest. ये महाप्रभु का विग्रह जो है पहले कमरे के अंदर ही रखा गया था, लेकिन मंदिर प्रबंधकों ने अब इस विग्रह को एक दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। So Mahaprabhu's one of the close associates was Vakreshwara Pandit. He was an expert dancer. So after Mahaprabhu's disappearance, this particular place was handed over to Vakreshwara Pandit's disciple, Gopal Guru Goswami. Next one. तो महाप्रभु के जो सबसे निकट के परिकरों में से एक थे वक्रकेश्वर पंडित, जो कि जिन्हें नृत्य करने में बहुत ही निपुणता थी। और महाप्रभु के शरीर त्यागने के उपरांत, इस लीला को समाप्त करने के उपरांत, यह स्थल जो है, यह निवास स्थान जो है, वो वक्रकेश्वर पंडित के संरक्षण में आ गया। तदुपरांत वक्रकेश्वर पंडित के बाद उनके जो प्रिय शिष्य थे गोपाल गुरु, उन्होंने इस स्थल का जो प्रबंधन है वो गोपाल गुरु के हाथों में आ गया। This is the Samadhi Sthal, Sannyasa Sthal of Samadhi Sthal of Gopal Guru. और इसी प्रांगण में गोपाल गुरु का समाधि स्थल भी स्थित है। His disciples and his followers are currently maintaining this Gambhira. और वर्तमान काल में गोपाल गुरु की वंशावली में, उनके शिष्यों की वंशावली के जो भक्त हैं, अब इस मंदिर का संचालन वे करते हैं। Okay. Jagannath Swami ki jai, Mahaprabhu ki jai. Yeah, slowly we will take one by one. So this is one of the most important leela, first leela in what happened from Puri in this particular Gambhira. So after returning to Puri from South India Yatra, first he met this Kashi Mishra. He is the guru of King Prataprudh, and immediately Sarvam Bhattacharya introduces the most important servants of Jagannath Sriman. तो ये जो दक्षिण भारत की यात्रा करने के उपरांत महाप्रभु सर्वप्रथम काशी मिश्रा से उनकी भेंट हुई, जो कि राजा प्रतापरुद्र के गुरु थे। और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने काशी मिश्रा के जो निजी परिकर थे, उनका एक एक का साक्षात्कार चैतन्य महाप्रभु से करवाया। So we'll go a little detail in what is mentioned in Chaitanya Charitamrita and also what happened specifically in this particular Gambhira location. So on that particular day, he called all the servants of Jagannath. The first one to come and take darshan was Janardana and Krishnadasa. Janardana was serving Jagannath for Navakaliva. Every 12 years during that time, Janardana was serving, and Krishnadas carries a golden rod. The most important thing, like there is golden rod which will open, which will make the eyes open. And also this Sikhi Mahiti, he was in charge of writing. His name was called as Duvela Karana Pada Prapta Karamchari. Karamchari is like kind of a servant. Okay. So what is the main thing? He is Karana Pada Prapta, which means what? He is the person who writes the every year calendar. Now, depending upon the Hindu calendar between the sun and moon directions. So Sikhi Mahiti was in charge of writing the calendar. तो एक एक करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के जो परिकर थे उनके बारे में उनका साक्षात्कार करवाया। तो सर्वप्रथम थे जनार्दन मिश्र, जनार्दन प्रभु। तो जनार्दन प्रभु का कार्य था नवकलेवर में जगन्नाथ जी की सेवा करना। तो नवकलेवर, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, नवकलेवर वो उत्सव होता है जहाँ पे जगन्नाथ जी के पुराने विग्रह को समाधि देकर दारू के नए विग्रह जो है वो स्थापित किए जाते हैं। हर 12 वर्ष पे ये नवकलेवर का उत्सव होता है। दूसरे जो परिकर थे वे कृष्णदास थे। कृष्णदास का कार्य था सोने से बना दंड उसे उठाना। और उसके उपरांत सिखी महती जी का कार्य था वार्षिक पंजिका बनाना। और इन्हें देउल कारण पद प्राप्त कर्मचारी भी कहा जाता था।
और जो श्री मंदिर में इनका एक ही कार्य था, एक ही सेवा थी कि वार्षिक पंजिका बनाना। So we will take darshan when we there's a place called Benapole, more or less near Alwarnath place. So when we go there, then we can take darshan of his pen, his writing pen, and other things. तो जब हम अलवारनाथ जाएंगे उस समय वहां पे एक स्थल है जिसका नाम है बेनापोल। तो उस स्थल पर सिखी महती के द्वारा उपयोग किया गया कलम और दवात के भी दर्शन करेंगे। Then others also called as Murari, Mahati, Chandaneshwara, Simheshwara, Murari Brahmana, Vishnu Paramananda, all these things, all these devotees these are all the Puri devotees based out of Puri. So they all got darshan of Mahaprabhu and then they all started serving. इसके अलावा मुरारी महती, चंदनेश्वर, सिम्हेश्वर, मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास, परमानंद प्रहराज महाराज राजा के अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभालते थे। और ये सारे जो भक्त थे वे स्थानीय थे, पुरी के निवासी। After some time, Bhavananda Rai, father of Ramananda Rai. So by this time, what had happened? Mahaprabhu had met Ramananda Rai in South India, and he was very happy. So Mahaprabhu told Ramananda Rai, "Okay, you can go back to King Pratap Barunda and say that no, you want to resign and serve the Jagannath temple and myself. So like that you go." So he was having staying there in near Godavari to complete his his government activities. So by that time, Bhavananda Rai, his father, and he had 5 sons. So other 4 sons like Vaninatha Rai, Gopinath, Kalanidhi, and Sudhanidhi, all 4 of them came and met Mahaprabhu, and Mahaprabhu accepted everybody and told Bhavananda Rai that you have 5 sons, they are like Panchapandavas. तो भवानंद राय भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। भवानंद राय जो हैं वो रामानंद राय के पिताजी हैं। और जैसा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनुरोध किया था कि जब वे दक्षिण भारत की यात्रा पे जाएं तो राजमंदिर के निकट रामानंद राय से जरूर साक्षात्कार करें। और जब रामानंद राय से महाप्रभु मिलते हैं तो रामानंद राय जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और रामानंद राय ये इच्छा जताते हैं कि वे अब महाप्रभु की सेवा में लगना चाहते हैं। महाप्रभु ने निर्देश देते हैं कि वे राजा से जाके मिले और उन्हें कहें कि अब वे राज्य का कार्यभार नहीं संभालना चाहते और उनका एक ही उद्देश्य है कि वो जगन्नाथ मंदिर की सेवा और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह से लगना चाहते हैं और यही उनकी इच्छा है। इस दौरान भवानंद राय को भी यह पता चलता है कि उनका पुत्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना चाहता है और उसका साक्षात्कार जो है वो महाप्रभु से हुआ महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। भवानंद राय अपने 4 पुत्रों को लेकर महाप्रभु के समक्ष आते हैं और महाप्रभु उनके 4 पुत्र 5 पुत्र रामानंद राय को लेकर जो 5 पुत्र हैं उनमें से जो 4 उस समय जो उनके साथ आते हैं, क्योंकि रामानंद राय जो है पहले ही महाप्रभु से भेंट कर चुके हैं, तो बाकी जो 4 पुत्र हैं वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि और सुधानिधि, इन सारों को महाप्रभु स्वीकार करते हैं और भवानंद राय को कहते हैं कि आपके जो 5 पुत्र हैं वे पांडवों के समकक्ष हैं। When everybody is settled down and everything is okay, Mahaprabhu calls Sarvabhauma Bhattacharya, Nityananda Prabhu, and tells them, I don't want any more service of this Kala Krishna Das. So along with Mahaprabhu, Kala Krishna Das went to the entire South India Yatra. And then when he came back, Mahaprabhu called Sarvabhauma Bhattacharya and Nityananda Prabhu and told, I don't want any more service from this Kala Krishna Das and I don't want to see him. That he will say. तो जब दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके जब महाप्रभु पुरी वापस लौटते हैं तो कुछ दिन के उपरांत वे सार्वभौम भट्टाचार्य और नित्यानंद प्रभु को अपने समक्ष बुलाते हैं और उनसे निर्देश देते हुए कहते हैं कि मैं इस काले कृष्णदास का मुंह नहीं देखना चाहता। ये काला कृष्णदास कौन है? काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ ही दक्षिण भारत की यात्रा पे महाप्रभु के निज सेवक बनकर महाप्रभु का सहयोग करने के उद्देश्य से महाप्रभु के साथ ये दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे। तो जब वापस आने के बाद महाप्रभु कहते हैं मैं इस काले कृष्णदास का मुख नहीं देखना चाहता और मुझे इस काला कृष्णदास से कोई भी सेवा नहीं चाहिए, इसे आप मेरी सेवा से निकाल दो।
and everybody will shout and say, "What happened? What happened? What happened? What else is to happen?" This Kala Krishna Das went behind some gypsy women when this Bhattadaris, from Kerala, Bhattachari, like Nambudris, they called as Nambudris. So they tried to allure him, and he just went off behind them. So I had to pull him, like that he would say. तो सारे सारे जो भक्तगण हैं वो आश्चर्यचकित विस्मित हो जाते हैं, अरे महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सब महाप्रभु से जानने की चेष्टा करते कि वो क्या हुआ था जो आप ऐसा कह रहे हैं। तो महाप्रभु कहते कहने के लिए बचा ही क्या है, और क्या कहना ही क्या है, बस कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये काला कृष्णदास दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान नंबूतरी औरतों के पीछे पगला गया था, और मैं उसे किसी तरह से उसे बचाकर मैं लेके आया हूँ। So what is the story is, when Mahaprabhu went all the way to South India, just by chanting the holy name to the Lord, everybody chanting, and then he was able to realize people the Krishna consciousness and make them to chant the holy name. So it was so popular that wherever he went, a lot of people were following, and he had so much of followers all the way across various temples and various places. And wherever he went, he just stayed in some of the Brahmanas' house. He had some simple prasadam, then he went, keep on going. So when he went towards this Nambudri's place, all the Nambudris become very jealous of him, and so they tried to make some kind of false propagation and some false statement against Mahaprabhu. So for that they made one trap in which Kala Krishna Das was made attracted to some of the ladies, and then Mahaprabhu at that point realized and then went pulled him with the shika. I had to pull him with the shika and then bring him back to my state. तो कथा ऐसी है कि महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, तो उस दौरान उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का बहुत ही तीव्रता से प्रचार किया। वे जिस भी ग्राम से गुजरे या जिस भी शहर से होकर निकले, वहां के सारे जो लोग हैं वे भक्त बन गए। वो सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे, और महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सारे लोग जो हैं वो कृष्ण भक्त बन गए। चाहे कोई ग्राम हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई कस्बा हो। और यात्रा के दौरान महाप्रभु ब्राह्मण परिवारों, जो भी ब्राह्मण परिवार होते थे निकट के, उनके यहाँ पे वो प्रसाद वगैरह पाते थे, और इस तरह से वे दक्षिण भारत की यात्रा सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन कर रहे थे। जब महाप्रभु और इसके साथ साथ महाप्रभु के सारे लोग जो है वो उन्हें महाप्रभु के एक प्रकार से शिष्य बन गए या उनके अनुगत बन गए, महाप्रभु के अनुगत बन गए सारे जो निवासी थे इन शहरों के, इन गांवों के निवासी। तो महाप्रभु जब इस तरह से दक्षिण भारत के केरला में पहुंचे, केरल नामक स्थान में पहुंचे, तो वहां पे वहां के जो स्थानीय निवासी थे, जिन्हें नंबूतरी नाम से जाना जाता है, वे महाप्रभु की सफलता को देख के, महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन के प्रचार को देखकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो गए कि किस तरह से यह व्यक्ति जो है वो कृष्ण नाम का प्रचार कर रहा है, हरे कृष्ण का कीर्तन का प्रचार इस तरह से कर रहा है। तो उन्होंने एक व्यू रचा, उन्होंने इस तरह से किया कि हम कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ईर्ष्यावश कि इनकी जो ख्याति है उसमें दाग लग जाए, हम किसी तरह से इन्हें हम अपमानित कर सके या इनकी बुराइयां जो है समाज में फैला सके। तो उसी के उद्देश्य से उन्होंने कुछ स्त्रियों को नियुक्त किया जिनका काम था इनके सहायक को गलत संग में फंसाना। तो उसी व्यू के अंतर्गत कुछ स्त्रियां आई और काला कृष्णदास को फंसा कर उनके साथ ले जाने लगी अपने साथ, मतलब वो काला कृष्णदास उन स्त्रियों के साथ जाने लगा। महाप्रभु ने जब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तो महाप्रभु ने गए और महाप्रभु ने काला कृष्णदास की शिखा पकड़ के उसे खींचते हुए लेके आए, जिससे वे किसी अवैध किसी संग में न पड़ पाए और जिससे बदनामी ना हो। Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda, and Damodara will say, okay, we will take care. We'll give him some proper activity like that. He'll say, and then Mahaprabhu will say, okay, whatever you want to do, let him you do, but I don't want to see him. तो स्वरूप दामोदर और नित्यानंद प्रभु ये सब कहते हैं कि हम इसे देखते हैं, काला कृष्णदास को समझाते हैं और इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मैं इस काला कृष्णदास का मुंह नहीं देखना चाहता। They will decide what to do. Then they will think,
okay, if he sees, if he is in Puri, then it will be much more problem. So they also wanted somebody to go to way all the way back to Mayapur and convey that Mahaprabhu has come back from 6 years. After 6 years, he has come back from South Indian Yatra. So whomsoever wants to take darshan of Mahaprabhu from Navadip, Mayapur, everybody can come. So that message has to be conveyed and also conveyed to Sachimata. So then they decided, okay, let this Balakrishna Das go and convey the message. So that was the first year where all the Mayapur devotees came for the Rath Yatra. तो फिर नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु ये सब चिंतन करने लगे किस तरह से इस समस्या का हल किया जाए। तो उसी दौरान उन्हें ये संदेशा भी नवदीप और बंगाल में पहुंचवाना था कि महाप्रभु जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस आ गए हैं, और सची माता को भी ये बताना था कि महाप्रभु जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गया। तो उन्होंने इस काला कृष्णदास को ये सेवा दी कि वे जाए और बंगाल में नवदीप में जाकर सबको बताए कि चैतन्य महाप्रभु जो है, और सच्ची माता को भी बताए कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके अब पुरी आ गए हैं और बंगाल के जो भक्त हैं वो महाप्रभु से मिलने के लिए आ सकते हैं। Also very important Leela where we have to understand it outwardly it might look like the Supreme Lord or the Acharyas kind of rejected, but no, he is actually making him to do different kind of a seva. Even Prabhupada also, even if a person makes a biggest offense also, Prabhupada will say it's okay, we will try to give him some other seva and not make him go out of Krishna consciousness, not make him go out of ISKCON. So that was the mantra where Mahaprabhu himself demonstrated, and Nityananda Prabhu and others ensured that Radha Krishnadas, even though he committed a biggest offense, but still he should get a chance, and they give him this kind of a wonderful seva. So we also should see that if somebody is doing that kind of this one, but we should give them any kind of a seva so that at least the Krishna bhavana, the Krishna consciousness still remains with them and not move or make him throw away or go away from the movement. तो इस लीला से हमें क्या सीख मिलती है? इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि महाप्रभु हम बाहरी रूप से इस तरह से देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि महाप्रभु ने काला कृष्णदास को निकाल दिया या उनका परित्याग कर दिया, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि महाप्रभु ने उसे निकाला, लेकिन उसे एक अलग तरह से सेवा में उसे लगाया गया। भले ही उसे निष्कासित कर दिया गया, लेकिन भक्तों ने उसे पुनः उसे भगवान की सेवा में नियुक्त किया। उन्हें क्या सेवा दी गई? उन्हें सेवा दी गई, काला कृष्णदास को सेवा दी गई कि वे जाएं और संदेश जो है संदेश वाहक का कार्य करें और संदेश को जाकर के बंगाल में बताएं लोगों को कि महाप्रभु चैतन्य जो है वो वापस पुनः यात्रा समाप्त करके आ गए हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने आचरण से यह प्रदर्शित किया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी घृणित कार्य करे, कितना भी गलती कर दे, लेकिन हमें उसे कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। अगर कोई किसी एक सेवा में अगर वो त्रुटि कर रहा है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उसे किस तरह से हम उसे किसी दूसरी सेवा में लगाएं, जिससे वो कृष्ण भावनाभावित जो भक्ति का जो मार्ग है उससे विचलित ना हो, उससे पथभ्रष्ट ना हो। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी जो भी भक्त है, अगर कोई क्योंकि अगर उसे हम निकाल देंगे, उसका त्याग कर देंगे पूरी तरह से, तो भक्ति के पद से च्युत हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसे येन केन प्रकार ने हमें उस व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति में लगाए रखना है, कृष्ण की सेवा में लगाए रखना है, जिससे वो उसकी कृष्ण भावना है जो है वो कभी मिटे नहीं, वो कभी समाप्त ना हो और वो भगवान और भक्तों के संग में सदैव जुड़ा रहे। Because we don't have the right to send somebody out, because it is all Krishna and Chaitanya Mahaprabhu whose benediction, whose love and affection is flowing costlessly, without any qualification, without any prerequisite. So it has to be given to everybody and anybody, irrespective of whatever they are able to understand. So that is why our acharyas always recommend that we should always be very, very humble and submissive to everybody. और हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई नहीं है जो किसी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित से बाहर कर सके। ये जो प्रक्रिया है या ये जो संघ है, ये महाप्रभु का संघ है
और महाप्रभु जो हैं बड़े कृपालु दयालु हैं और उन्होंने सबको कृष्ण भावना का प्रचार किया और सबको इसमें सब प्रकार के व्यक्तियों को इसमें उन्होंने रहने का अवसर प्रदान किया या इस पे जोड़ा। तो हमें कभी भी किसी को निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए और एक भक्त होने की कारण हमें करुणा और दया का भाव होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई भक्ति में आया है तो उस पे महाप्रभु चैतन्य की कितनी कृपा है जिससे वो कृष्ण भक्ति में जुड़ा रहे। When you hear about Guru Maharaj, so many leelas. One of the main important leela was somebody was doing some malpractice in fund management, and how benevolent or how graceful was our Guru Maharaj. So we have to remember that also. तो हम जैसे हमारे जो गुरु महाराज हैं, जब उनके बारे में जब हम कथा सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, तो उस समय हमें ये लीला का ये भी पता चला कि एक बार एक व्यक्ति जो है, एक भक्त जो है, वो किस तरह से मंदिर के पैसों को चुरा रहा था, मंदिर के पैसों का गबन कर रहा था और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। जब ये बात लेकर भक्तगण गुरु महाराज के पास निकट गए, समक्ष गए, तो उन्होंने उस भक्त को बाहर नहीं किया, बल्कि उससे जानना चाहा या समझना चाहा कि उस भक्त को ऐसी क्या परेशानी आ गई जिससे वो कृष्ण के पैसे का गबन करने लगा। तो महाराज ने उसकी समस्या को समझा और जाना और उस प्रकार से उसे ये निर्देश दिया गया कि इस व्यक्ति की ये समस्या है, इसका निराकरण करे और इसे क्या कहते हैं, धन से संबंधित सेवा में न लगाकर इसे कोई और सेवा दी जाए, लेकिन इसे मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं किया जाए। तो देखिए महाराज कितने कृपालु हैं, किस तरह से वे सबको जोड़ के रखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भक्ति के मार्ग से कभी च्युत ना हो। And even ensured he increased his salary, which will never be happening anywhere in the world. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस व्यक्ति की जो पैसा चोरी कर रहा था उसकी पगार बढ़ा दी है, ठीक है, उसका जो भत्ता होता है उसे बढ़वा दिया। आप कहीं पे भी इतिहास में ऐसा नहीं देखेंगे कि अगर कोई चोरी करे तो उसकी पगार बढ़ जाए। आप लोग इसकी नकल करने का प्रयास मत कीजिएगा। Very bold. Okay, next one. So that is what. So we have seen this meeting. This is the beautiful photo of Mahaprabhu associating with Ramananda Rai. Anyway, this we will cover it later. I'm just giving you a glimpse. Okay, next one. So this is the entire list. So what happens? Kala Krishna Das goes and meets all the devotees. So when you read out the name, you should start understanding what are their individual qualities and the bhakti they had. For example, Advaita Acharya, Srivas Thakur, Vasudeva Datta. Vasudeva Datta was considered as Maha Vadanya, which means like Paradukha Dukhi. Like Prabhupada writes in his in his commentary, Vasudeva Datta was Paradukha Dukhi. Like that, everybody individually, whatever we have mentioned, have some unique qualities. Like Advaita Acharya, Srivas Thakur, Vasudeva Datta, Murari Gupta, Sivananda Sen, Acharya Ratna, Vakreshwar Pandit, Acharya Nidhi, Gadadhar Pandit, Shriram Pandit, Damodar Pandit, Sriman Pandit, Vijaya, Sridhara, Raghava Pandit, Nandanacharya. This is all from one group, Mayapur. And then from Kuriya Gram, that is also another gram, from which we had Satyaraj Khan, Ramananda Rai, Ramananda. Then from Khan village called Mukunda, Narahari, Sarkar, and Raghunandan Acharya. So all of this, just by reading out the name, we will get we should get that enthusiasm. तो काला कृष्णदास जो है, काला कृष्णदास जब जाते हैं और मायापुर पहुंचकर ये संदेश पहुंचाते हैं कि महाप्रभु जो है वो पुनः वापस आ गए हैं। और उसके उपरांत ये जो भक्त हैं, ये सारे भक्त जो यहाँ पे चिन्हित हैं, ये सब मायापुरी आने के लिए तैयार होते हैं। ये सारे जो भक्त हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं और बहुत ही सारों की अलग अलग ख्याति है, सारों के अलग अलग गुण हैं और हर जो भक्त है वो अपने अपने क्षेत्र में एक एक प्रकार से महारथी है। अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, वासुदेव दत्त को महाप्रभु अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि वासुदेव दत्त जो है महावदन्याय हैं
वो जैसे वैष्णव का जो सदाचार होता है जिसमें कहा जाता है कि वैष्णव जो है पर दुखा दुखी, और वासुदेव दत्त जो थे पर दुखा दुखी के प्रतिमूर्ति थे। मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, आचार्य रत्न, वकेश्वर पंडित, जैसा कि हमने वकेश्वर पंडित के बारे में सुना था, वकेश्वर पंडित जो थे नृत्य सम्राट थे। महाप्रभु के कीर्तन में बहुत ही सुंदर नृत्य किया करते थे। आचार्य निधि, गदाधर पंडित, श्रीमान पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान विजय, श्रीधर, राघव पंडित, नंदन आचार्य, ये सारे भक्त जो है मायापुर से आते हैं। उसके बाद कुलिया ग्राम से सत्यराज खान, रामानंद, और फिर खांडा नमक ग्राम से मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन आचार्य, ये सारे भक्त जो हैं वो महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं और मिलने की इच्छा रखते हैं। As we keep going into the different parikrama and different places, for each one of them we will go in detail and describe about their qualities. तो हम जैसे जैसे हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे, इन सारे भक्तों के विषय में जो भी लीलाएं हैं उनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। Prabhu ki jai. And there are other devotees like whereas this is a special list, like Paramananda Puri, we all know Paramananda Puri was a god brother of Mahaprabhu. Sarup Damodar was close friend of Mahaprabhu. His initial name was Purushottam Bhattacharya. He's like what do we say, he reads he's kind of very very poetic person. He can read or he can what do you say, he can recite poems of Bhagavatam, and I think so sweetly and nicely. And he was a very close associate early from his childhood with Mahaprabhu. So earlier he went out and had his own study and all. Then later on he came back and joined Mahaprabhu. So he is also a very important person. Sarup Damodar, Govinda, these two are very very close. And also we know this Paramananda Puri. Others like Brahmananda Bharati, that we will come, I will tell you that Leela, and then Kashi Ishwara Pandit. तो ये सारे कुछ विशेष भक्त हैं जो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। जैसे परमानंद पुरी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हमने चर्चा की थी कि परमानंद पुरी जो है वो महाप्रभु के गुरु भाई हैं। स्वरूप दामोदर का पहले दीक्षा के पहले उनका नाम था पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, और स्वरूप दामोदर जो है वो महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और परिकर भी हैं। स्वरूप दामोदर के अंदर जो विशेष गुण है कि स्वरूप दामोदर जो है वो एक कवि हैं, और वे जैसे विद्यापति, चंडीदास और भागवतम से संबंधित जो भी श्लोक है उनको कविता के रूप में वे चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत किया करते थे, गायन के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। और गोविंद, ब्रह्मानंद भारती, काशीश्वर पंडित, ये सारे भक्त। Yesterday we dealt about Govinda and Paramananda Puri and Kashishwar. Today this Brahmananda Bharati is also one more god brother. So this Brahmananda Bharati, I will just tell you few 4 minutes, okay. So this Brahmananda Bharati is also one of the god brothers of Mahaprabhu. Only thing is he will show himself as very pakka sannyasi, like wearing from Kashi or from Himachal or what is this, from Himalaya, like wearing all this deer skin. He will look like a big Tandava Murti, like with all the ashes, big shika, big hair. तो ब्रह्मानंद भारती जो थे वे महाप्रभु के ही गुरु भाई थे, लेकिन ब्रह्मानंद भारती की विशेषता ये थी कि वे अपने सन्यासी होने का बहुत रोब झाड़ते थे और इस तरह से प्रदर्शित करते थे कि वे बहुत बहुत महान सन्यासी हैं। जैसे उनका जो वेशभूषा होती थी, वे मृगछाल पहनते थे, भस्म लगाया करते थे और बड़े बड़े जटाएं रखा करते थे। Mahaprabhu, when all these people come, Mahaprabhu will notice Brahmananda Bharati. Then he will keep coming and asking to Paramananda Puri. Paramananda Puri, has Brahmananda Bharati has come? I am not able to see him. Where is Brahmananda Bharati? Like that, he will Brahmananda Bharati will be standing right in front of them. But Mahaprabhu will not directly call or talk with him. We will go to Paramananda Puri and say, where is Brahmananda Bharati? I wanted to see. And he will go to Kashishwara and say, where is Brahmananda Bharati? Like that, he will say. Then Mahaprabhu will just go to next person. Then Brahmananda Bharati will realize, oh, I think I am doing some mistake. Then he will realize, then he will see that whatever the outward form of sannyasi is not the actual sannyasam. Sannyasam is more in terms of what kind of renunciation that you have made internally, and also what kind of simplicity that you are trying to follow in the sannyasi. So just by wearing deer skin, just having that big kamandal, big jada, and all this bhasma, everything doesn't make you a sannyasi.
So like that, this kind of an indirect message he wanted to give to Brahmananda Bharati. तो जब ये सारे भक्त जो हैं वो महाप्रभु से मिलने आते हैं तो महाप्रभु जी पूछते हैं ब्रह्मानंद भारती कहाँ पे, परमानंद पुरी के निकट जाकर पूछते हैं कि ब्रह्मानंद भारती कहाँ पे है। और उसके बाद फिर काशीश्वर पंडित से आगे पूछते ब्रह्मानंद भारती कहाँ पे, जबकि ब्रह्मानंद भारती उसी भीड़ में उनके सामने ही खड़े रहते हैं। और फिर एक और भक्त से पूछते हैं कि ब्रह्मानंद भारती कहाँ पे है। जब महाप्रभु इस तरह से पूछते हैं तब ब्रह्मानंद भारती को ये आभास होता है कि जो सन्यास का अर्थ ये नहीं होता कि हम बाहरी आवरण से, बाहरी जो हमारी वेशभूषा से उससे हम सन्यासी बनते हैं। मृगछाल पहनना, बड़ी बड़ी जटाएं रखना, भस्म लगाना, कमंडलू रखना, ये सब ये असली सन्यास नहीं है। असली सन्यास तो आंतरिक है, वो तो मन में आता है, वो तो हृदय में आता है। जब हम चीजों से विरक्त होते हैं, चीजों से हम वैरागी बनते हैं, वो असली सन्यास होता है। बाहरी आवरण से कोई सन्यास नहीं बनता। तो हमारा जो सन्यास है वो हमारे आंतरिक मन से है, हमारे चोले से नहीं है सन्यास। Then he will realize and then he will change. So all of them have come now getting ready for the most beautiful, best Leela of Rath Yatra. So all the Puri, all the Mayapur devotees have come, Mahaprabhu's godbrothers have come, and also the readiness from Puri Rath Yatra is also getting ready. तो ये सारे भक्त जो हैं वो रथ यात्रा में सम्मिलित होने के उद्देश्य से आए हैं। ब्रह्मानंद भारती को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने आप को बदलते हैं और वे ब्रह्मानंद भारती जो है वो सुधर जाते हैं एक प्रकार से। Next one, I think with next one we'll stop. This Leela I think we'll take it tomorrow. Very nice Leela, which is very important also. Like we should understand the beautiful characteristics and qualities of Govinda, so that we can take it tomorrow. Can you go to the next one, Prabhu? Or that's all? This is last, Prabhuji. Okay. So you want to finish this or? We'll take it tomorrow, Prabhu. If it's deep, Prabhu, we'll take it tomorrow. Okay. Hari Bol Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai की जय, गौरंग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो यहीं पे यात्रा आज हम अपनी समाप्त करते हैं और कल की यात्रा यहीं से शुरू होगी। गोविंद की लीला से हम आगे बढ़ेंगे कथा में। और आप लोग से अनुरोध है कल ठीक समय 8 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या निराकरण करना चाहता है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। All the devotees are requested that we are stopping the class here and tomorrow we'll start again. And if somebody have any question, can ask the question by raising their hand. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes, go ahead, Prabhu. प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे हम सुनते हैं कि महाप्रभु जो 24 वर्ष जो है वो उन्होंने पुरी में बिताया प्रभु, लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने 24 वर्ष में संन्यास लिया प्रभु और उसके बाद वे 6 वर्ष जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, तो कैसे समझे प्रभु कि महाप्रभु जो 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे? No, that is what, like, at the age of 24, end of 24 and 25 starting Katwa, he had sannyas. He came to Puri, so that is the starting time. Okay, so he came to Puri. So he had his base in Puri because from Katwa on the way, Nityananda Prabhu and others will trick him like after. Actually, what will happen is, the Leela Chaitanya Charitamrita. So Nityananda Prabhu will trick him. He wanted to go to Vrindavan. So okay. Then they will make him sit on the boat instead of Yamuna on the Ganga. They will all come to Shantipur, right? So where they will meet Mahaprabhu, Advaita Acharya, and Mahaprabhu's mother Sachimata will come and then say, "Don't go anywhere. Don't go to Vrindavan. All you be better stay in Puri." That was his mother's instruction. So that you can stay close to Bengal. So that is what his mother's instruction. He will say, "Yes, I will stay in Puri." So that's one of the first main reasons. So that's why he comes to Puri, and then in Puri he stays there. But he goes to from 25 years to 30 years. He goes to South India Yatra, 30-31. Then again he comes back. Then between 30 or somewhere 30-31, he goes to Vrindavan 1 or 2 years, and then he comes back. So between 32 to 48, continuously he stayed in Puri only. But the count perspective, it is from 25 to 48. Okay, bro. समझ गया bro जी।
और प्रभु जी एक काला कृष्णदास के विषय में प्रश्न है प्रभु। काला कृष्णदास प्रभु जी साक्षात भगवान के निकट परिकर है प्रभु। तो मतलब ये काला कृष्णदास का उन स्त्रियों में फंसना एक महाप्रभु के लीला है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, या काला कृष्णदास के अंदर कोई कलमश था इस वजह से वो फंसा प्रभु? इस पे कुछ निराकरण करेंगे? There's no kalmash. It is basically the power or influence of Maya. Because it is so powerful that it can, even if you are very near, again very good example that we should understand. It doesn't mean that you are very close and be very dearful to the Lord. Sometimes the Lord himself will try to test, or the Maya will, because it is Maya's job to keep on giving you test to ensure that you are on the right path. So she'll give you some test. In Mahaprabhu, the Lord also sanctions that because it will help them to keep purifying themselves. So that time, sometimes you pass, if you keep on passing, yes, you are on the right track. Sometimes you fail, then the Lord will definitely try to make you up. So that is why we have to understand. Even though you are very exactly near serving the Lord also, you might get into. ठीक है प्रभु। एक और प्रश्न है प्रभु जी। ये प्रश्न है, जैसे हम बात कर रहे थे प्रभु जी की विनम्रता की बात की, अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो कई बार प्रश्न आता है कि कितना सहे प्रभु, कितने विनम्र बने। तो ये तो प्रैक्टिकल, मतलब कई बार बोलते हैं भक्त की मैं हम लोग कितना विनम्र बने। विनम्रता की भी कुछ हद होती है। तो इस केस में प्रभु जी हम कैसे समझे विनम्रता की कुछ हद होती है, या विनम्रता ये एक परमानेंट क्या कहते हैं कि हरदम के लिए एक व्यवस्था है प्रभु की, हमें हरदम विनम्र रहना, कि ऐसा कोई थ्रेशोल्ड होता है या कोई क्या कहते हैं उसका कोई मापदंड होता है कि इतने समय तक हम विनम्र रहेंगे, बाकी समय विनम्र नहीं रहेंगे? नहीं, you have to see the cause and effect. Why did he do it? Like our acharyas did the root cause analysis. You do a root cause analysis, find out if it is like very genuine. There might be some specific reason. In that case, then we should be ready to forgive. But the same thing is kept on repeating, or the same thing is like done on a like kind of wanted basis. Then of course you can ignore and you can you can take some kind of specific action. But if you find that there was some other genuine reason or something, then we'll always be this one. But it is very important that we should be having that mood. The first thing is the readiness to forgive. What do you say? The state of mind to give forgiveness should be the first point. Then you can decide on how, what, ways and means. Because we don't have that authority to give punishment. At least we can give forgiveness. That's all. सो प्रभु इट ऑल, मतलब ये सारा उस पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर के जो लोग हैं या जो उनके जो मार्गदर्शक हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे अभी हमसे कोई सीनियर व्यक्ति है प्रभु और वो कुछ गलती पे गलती किए जा रहा है और हम उसको बता रहे हैं उसकी सीनियर्स को, और अगर वो कोई उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है या कोई वो नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? Yeah, we have to pray to the Lord. We have to, if at all possible, then we have to take up to the higher ups. Then we have to convey it in a very polite way, and we have to be ready to accept whatever decision they take. But even when you go to the higher up and we don't get a decision, we'll have to just pray to the Lord. Somehow or the other, the Lord and Acharya will hear our petition and our this one, and then they will do it. So you have to either be in the muddle or you come out of it. That's all. You don't get into it. That's all. ठीक है प्रभु, समझ में आ गया प्रभु जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु।